بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ لوط و ابراہیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم ہی کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی رہین منت تھی۔ اسی لیے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ یہ اور ان کی بی حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جب ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط سے فرمایا مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین خلیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ اور حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند فرماتے رہے۔ سدوم اردن کی وہ جانب جہاں آج بحرمیت یا بحر لوط واقع ہے، کہیں وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ علمان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق بد اتوار اقوام کے دوسرے عیب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کے قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ میں بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور علی لیلان فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چہنچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی سی جاتو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سود اگر رنج و غم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کئی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ نے ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیر معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد العرض و مشتی کو سدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچانو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا، العرض کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبہ کے لیے کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان من کر کہا کہ بے شک العرض کو سرومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہے۔ العرض یہ سن کر غصہ میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا، اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اہل سدوم اس قدر ظلم بخش، بے حیاتی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ حضرت لوط اور تبلیغ حق۔ ان حالات میں حضرت لوط نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباشتوں پر ملامت کی، اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی۔ مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فقرہ تھا، گویا حضرت لوط اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور
ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ بڑے پاکباز ہیں उनका हमारी बस्ती में किया काम या नासह मुशफिक की मरबियाना नसीहत से गैज़ वाओ गज़ब में। अगर कहते थे कि अगर हम नापाक और बेहया हैं और वो बड़े पाकबाज हैं तो उनका हमारी बस्ती से किया वासिता, उनको यहाँ से निकालो। हज़रत लूत ने फिर एक मर्तबा भरी महफिल में उनको नसीहत की और फरमाया, तुमको इतना भी एहसास नहीं रहा कि ये समझ सको कि मर्दों के साथ बेहयाई का ताल्लुक लौटमार और उसी कस्म की बदअखलाकियाँ बहुत बुरे अमाल हैं। तुम ये सब कुछ करते हो और भरी महफिलों और मुजलसों में करते हो और शर्मिंदा होने के बजाय बाद में उनका जिक्र इस तरह सुनाते हो कि गोया ये कारनुमायाँ हैं जो तुमने अंजाम दिए हैं। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गम वाओ गुस्सा से तलमला उठी और कहने लगी, लूत बस ये नसीहतें और अबरतें ख़त्म कर, और अगर हमारे इन अमाल से तेरा खुदा नाराज़ है तो वो अजाब ला कर रखा जिसका जिक्र करके बार बार हमको डराता है, और अगर तो वाकई अपने कौल में सच्चा है तो हमारा तेरा फैसला हो जाता ही अब ज़रूरी है। बस इस लूत के कौम का जवाब इसके सिवाय कुछ न था कि वो कहने लगे तो हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आओ अगर तो सच्चा है हज़रत इब्राहीम। और इधर ये हो रहा था और दूसरी जानिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में सैर कर रहे थे। इन्होंने देखा कि 3 अशख़ास सामने खड़े हैं। हज़रत इब्राहीम निहायत मुतवाज़ो और मेहमान नवाज थे और हमेशा उनका दस्तरखान मेहमानों के लिए वसी था, इसलिए इन तीनों को देखकर वो बेचत मसरूर हुए और उनको अपने घर ले गए और बिछड़ा ज़बा करके तके बनाए और भून कर मेहमानों के सामने पेश किए, मगर इन्होंने खाने से इनकार किया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम ने समझा कि ये कोई दुश्मन हैं जो हसब दस्तूर खाने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ खौफ हुए कि आखिर ये कौन हैं। मेहमानों ने जब हज़रत इब्राहीम का इज़्तिराब देखा तो उनसे नहस कर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं, इसलिए सदूम जा रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम को इत्मीनान हो गया कि ये दुश्मन नहीं हैं बल्कि मलाइकता अल्लाह हैं, तो अब उनकी रक़त क़ल्ब जज्बा हमदर्दी और मोहब्बत व शफ़क़त की फरावानी गालिब आई और इन्होंने कौम लूत की जानिब से झगड़ना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि तुम इस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा खुदा का बरगज़ीदा नबी मौजूद है, और वो मेरा बर और ज़्यादा भी है और मिल्लत हनीफ का परू भी। फरिश्तों ने कहा, हम ये सब कुछ न जानते हैं मगर खुदा का ये फैसला है कि कौम लूत अपनी सरकशी, बदअमली, बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से ज़रूर पिलाक की जाएगी और लूत और इसका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत की बीवी कौम की हिमायत और उनकी बदएमालियों और बदअक़ीदियों में शिरकत की वजह से कौम लूत ही के साथ अजाब पाएगी। गर्ज़ हज़रत लूत के इबलाग हक़ अमर बालमरूफ और नहीयन अल मुनकर का कौम पर मुतलक कुछ असर न हुआ और वो अपनी बदअखलाक़ियों पर उसी तरह कायम रही। हज़रत लूत ने यहाँ तक गैरत दिलाई कि इस बात को नहीं सोचते कि मैं रात दिन जो इस्लाम और सिरात मुस्तकीम की दावत वाओ पैगाम के लिए तुम्हारे साथ हैरान वाओ सरगर्दां हूँ किया, कभी मैंने तुमसे इस सही वाओ कोशिश का कोई समरा तलब किया कोई उजरत मांगी, किसी नज़र वाओ नियाज का तालिब हवा, मेरे पेश नज़र तो तुम्हारी देनी वाओ दनीवी सादत वाओ फलाह के सिवाय और कुछ भी नहीं है, मगर तुम हो कि मुतलक तवज्जो नहीं करते। मगर उनके तारीक दिलों पर इस कहने का भी मुतलक कुछ असर न हुआ और वो हज़रत लूत को अखराज और संसारी की धमकियां देते रहे। जब नौबत यहाँ तक पहुंची और उनकी सिया बख्ती ने किसी तरह अखलाकी ज़िंदगी पर आमादा न होने दिया, तब उनको भी वही पेश आया जो खुदा के बनाए हुए कानून जज़ा का यकीनी और हतमी फैसला है, यानी बदकरदारियों पर इसरार की सज़ा, बर्बादी व हलाकत। गर्ज़ मलाइकना अल्लाह हज़रत इब्राहीम के पास से रवाना होकर सरून पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए। ये अपनी शक्ल व सूरत में हसीन व खूबसूरत और उनमें नौजवान लड़कों की शक्ल व सूरत में थे। हज़रत लूत ने इन मेहमानों को देखा तो घबरा गए और डरे कि बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ किया मुआमला करने की, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं बताया गया था कि ये खुदा के पाक फरिश्ते हैं। अभी हज़रत लूत उसी ही सवाओ पेश में थे कि कौम को खबर लग गई और लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ाए और मुतालबा करने लगे कि
तुम उनको हमारे हवाला करो। हजरत लूत ने बहुत समझाया और कहा कि या तुम में कोई भी सलीम फितरत इंसान रजिल रशीद नहीं है कि वो इंसानियत को बरते और हक को समझे। तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार हो और ख्वाहिशात नफ्स के ऐफा के लिए फितरी तरीका अमल को छोड़कर और हलाल तरीका से औरतों को रफ़ीक़ा हयात बनाने की जगह इस मलून बेहयाई के दर पे हो काश में रुकन शदीद की ज़बरदस्त हिमायत हासिल कर सकता। हजरत लूत की इस परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी सूरतों को देख कर घबराइए नहीं, हम मलाइका अज़ाब हैं और खुदा के कानून जज़ाए अमाल का फैसला उनके हक में अटल है, वो अब उनके सर से मिलने वाला नहीं। आप और आपका ख़ानदान अज़ाब से महफूज रहेगा मगर आपकी बीवी उन्हीं बेहयाओं की रफ़ाकत में रहेगी और तुम्हारा साथ ना देगी। आखिर अज़ाब इलाही का वक्त आपहुंचा बतदा शब हुई तो मलाइका के इशारा पर हजरत लूत अपने ख़ानदान समेत दूसरी जानिब से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और इनकी बीवी ने उनकी रफ़ाकत से इनकार कर दिया और रास्ता ही से लौटकर सदूम वापस आ गई। आखिर शब हुई तो अव्वल एक हैबतनाक चीख ने अहल सदूम को तवाव बाला कर दिया और फिर आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर पलट दिया गया और ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नाम व निशान तक मिटा दिया। और वही हवा जो गुज़श्ता कौम की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका है। हजरत लूत अपने ख़ानदान के सदूम से हिजरत करके ज़ू या फ़ख्र की बस्ती में चले गए जो सदूम से करीब ही आबाद थी। आफताब निकलने के बाद जब इन्होंने सदूम की जानिब देखा तो वहाँ हलाकत व बर्बादी के निशानात के सिवाय और कुछ न था। हजरत लूत ने फिर मुगर को भी छोड़ दिया और उसके करीब एक पहाड़ी पर जा आबाद हुए और अमन व अमान से रहने सहने लगे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। हजरत इब्राहीम मजदद नबिया उन मुसलसल वाक़यात से बहुत से बसाइल व अबर हासिल होने के अलावा एक सबसे अहम बात यह ज़ाहिर होती है कि हजरत इब्राहीम की शख्सियत मनसब नबूवत व रिसालत में भी ख़ास इम्तियाजी शान रखती है। यूं तो खुदा का हर एक पैगंबर तौहीद का दाई और शरत का दुश्मन है और इसलिए तमाम नबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात में ये दो बातें कद्र मुश्तरक की हैसियत रखती हैं, बल्कि रूहानी दावत व इरशाद की असास व बुनियाद सिर्फ इन्हीं दो मुस्कों पर कायम है। मगर ये खुसूसियत हजरत इब्राहीम ही के हिस्सा में आई थी कि इस दुनिया में वो पहली हस्ती हैं जिन्हें इस राह अजीमत में सख्त से सख्त आजमाइशों और कड़ी से कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो उन मसाइब के मुकाबले में कामरान व कामयाब साबित हुए। गौर कीजिए, बुढ़ापे और यास की उम्र में हजारों दुआओं और लाखों आरज़ूओं के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था और अभी बच्चा शीर ख्वार है कि खुदाए ताला का हुक्म आता है, इब्राहीम इसको और उसकी वालिदा को अपने घर से जुदा करो और एक लिखवाओ बियाबान और बिन खेती की जमीन में जहाँ ना पानी है न सब्जा, उन दोनों को छोड़ाओ। फिर क्या हवा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी तअम्मुल किया और तमील इरशाद में किसी कसम का कोई असर सामने आया नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि बेचवन वाव चरा उन दोनों को मक्का की सरजमीन पर छोड़ाए। और इसके बाद जब वो सुन रशद को पहुंचता और माँ बाप की आंखों का नूर और दिल का सरवर बनता है तो अब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म मिलता है कि इसको हमारे नाम पर कुर्बान करो और अपनी फदाकारी व इताअत शारी का सबूत दो। इस नाजुक वक्त में एक मतबा से मुती और फरमानबरदार से फरमानबरदार हस्ती के ईमान व यकीन की किश्ती किस तरह बनूर में आ जाती है, इसका अंदाज़ा खुद करो। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब देखो कि न खुदा की वही की जो ख्वाब और रुया की शक्ल में दिखाई गई थी इन्होंने कोई तावील की, न इसके लिए हिला बहाना सोचा और न इसको टालने के लिए कोई फिक्र व तरूद किया। सुबह उठे और अपने लखत जिगर को लिया और तमील इरशाद इलाही में वो सब कुछ किया जो उनके इंसानी हाथ कर सकते थे और इस तरह अपनी मुहीर अलाकुल वफा केशी का सबूत दिया। और तीसरी सख्त आजमाइश का वो वक्त था कि जब बाप कौम और बादशाह वक्त सबने मुत्तफिक हो कर ये फैसला कर लिया कि इब्राहीम या अपने पैगाम हक से बाज आ जाए वरना तो उसको देखती आग में डालकर खाकिस्तर कर दिया जाए। तब जालिमों का ये फैसला और इत्तेहाद किया इब्राहीम के कदम डगमगा सका नहीं, बल्कि वो एक कसम का महार बनकर उसी तरह अपनी जगह खड़ा रहा और पैगाम हक और खुदा की रशद व हिदायत को इस अज़ाम व सुबात के साथ सुनाता रहा जिस तरह शुरू से करता रहा। फिर दुश्मनों ने जो कुछ कहा था आखिर कर दिखाया और
इसको दहकती आग में झोंक दिया, मगर इब्राहिम के सुकून व इत्मीनान में मुतलक कोई फर्क नहीं आया। अलबत्ता दुश्मनों की दुश्मनी और उनके तमाम मकरो फरेब को इब्राहिम के खुदा ने खाक में मिला दिया और आग के शोले इसके लिए बरद व सलाम बिन गए, और इस तरह इब्राहिम अपने कवी तर जगहबान के जेर सार आदत व हिदायत के फैजान से बनदगान खुदा को बराबर मुनव्वर व रोशन करता रहा, और इसकी जुरत हक और दावत इला अल्लाह में इस तरह हो गई। इन तमाम सख्त इम्तिहानों और आजमाइशों और फिर उनमें साबित कदमी और इस्तिकामत के अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी इम्तियाजी खुसूसियत ये थी कि इन्होंने शरक और तवहीद की मुतज़ाद जिंदगी के लिए एक ऐसा इम्तियाज कायम कर दिया जो इन्हीं जैसे जलील अलक़दर पैगंबर के शायान शान था। यानी इन्होंने असनाम परस्ती और कौकब परस्ती की तरदीद व तजलील और उनकी शनात का इजहार करते हुए ये तसरी फरमाई, बिलाशुबा मैंने अपना रुख इस ज़ात की तरफ झुका दिया है जो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, खालिस इसका होकर और मैं शरक करने वालों में से नहीं हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस इरशाद का मतलब ये है कि खुदा के तस्वुर की दो राहें हैं, एक सही और दूसरी गलत राह ये है कि ये अकीदा कायम कर लिया जाए कि खुदा को राज़ी करने, इसको खुश रखने और इसकी इबादत व परस्तिश करने के लिए ज़रूरी है कि बुतों और सितारों की पूजा की जाए, क्योंकि जब ये अरवाह हमसे खुश हो जाएंगी तो ये खुदा को हमसे राज़ी कर देंगी। इस अकीदा का नाम शरक और सादनीत है, क्योंकि इस अकीदा के मुताबिक अबूदियत व परस्तिश के तमाम वो खुसूसी इम्तियाज़ात जो सिर्फ ज़ात वाहिद के लिए मखसूस रहने चाहिए थे, दूसरों के लिए भी मुश्तरक हो जाते हैं। और में शरक की हकीकत इसके मुकाबला में सही राह ये है कि इस इल्म व यकीन को अकीदा बनाया जाए कि खुदाए ताला की रजामंदी और खुशनुदी का तरीका उसके अलावा दूसरा नहीं है कि खुद उसी की परस्तिश की जाए, इसको हाजत रवा और मुश्किल कशा समझा जाए। नफ़ा व ज़रर, सेहत व मरज़, इफलास व तमूल, रिज़्क़ का कब्ज़ा व बस्त और मौत व ज़ैसत गर्ज़ तमाम उमूर में उसी को और सिर्फ उसी को मालिक व मुख्तार मुतलक तस्लीम किया जाए, और इसकी रज़ा व अदम रज़ा की मारिफत के लिए इसके भेजे हुए बचे पैगंबरों और रसूलों की ही हिदायत व रशद पर अमल किया जाएगा। या दूसरे अल्फाज में यूँ कह दिया जाए कि खुदा को राज़ी रखने और इससे क़ुर्बत हासिल करने के लिए देवी देवताओं को ज़रिया बनाने की हाजत नहीं, बल्कि सिर्फ इस ज़ात अहदियत की अबूदियत व बनदगी को सरमाया हयात बताया जाए। उसी अकीदा का नाम इस्लाम और हनीफीत है। इसलिए ये पहला दिन था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली राह को शरक व साबित और दूसरी राह को इस्लाम व हनीफीत का नाम देकर दोनों राहों के दरमियान मुंतकिल इम्तियाज़ कायम कर दिया, और ये इम्तियाज़ ऐसा मकबूल हुआ कि आने वाली तमाम पैगम्बराना तालीम व दावत की बुनियाद उसी नाम से मौसूम की गई, हत्ता कि खातिम अल-अंबिया मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के आखिरी पैगाम का नाम भी अमलत हनीफ और इसके परू का नाम मुस्लिम करार पाया। और पैरवी करो मिल्लत इब्राहिम की, जो हनीफ था। इस इब्राहिम ने तुम्हारा नाम पहले ही से मुसलमान रखा है, और इस कुरान में भी यही नाम पसंद रहा। यही वजह है कि सूरा इब्राहिम की ये खुसूसियत है कि इसमें अनबिया अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और उनके हालात व शख्सियात और नताइज को मजमूई तौर पर पेश किया गया है, और छाया गया है कि पैगंबरों की दावत, रशद व हिदायत के मानने वालों और ना मानने वालों के दरमियान क्या फ़र्क है, और ये कि खैर व शर्तात व बगावत और तस्लीम व इनकार में किया गैर अल्लाह की खुशनुदी को भी कोई मकाम हासिल है। यह सिर्फ रज़ा व अदम रज़ा इलाही ही असल ईमान है। बस इन मजमूई खुसूसियात इब्राहिमी के पेश नज़र बिलाशुबा ये कहना सही है कि नबियों और रसूलों की मुक़द्दस ज़िंदगी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम मजदद नबिया व रसूल का मकाम है। वाक़यात ज़ेर बहस से मुतालिक चंद बरतें जब इंसान किसी अक़ीदा को इल्म व यकीन की रोशनी में कायम कर लेता है और वो इसके क़ल्ब में जागज़े, इसकी रूह में पैवस्त और इसके सीना में नक्श का लहजर हो जाता है, तो इसका फ़िक्र व ख़याल, उसकी सोच विचार और इसका इस्तग़राक़ इस बारे में इस दर्जा ज़बरदस्त और साबित व रासिख़ हो जाता है कि कायनात का कोई हादिसा और दुनिया की कोई सख्त से सख्त मुसीबत भी इसको अपनी जगह से नहीं हटा सकती। वो इसके लिए आग में बेखतर कूद पड़ता, समंदर में बेझिझक छलांग मार देता और सूली के तख्ता पर बेखौफ जान दे देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के
عزم و सुबात की मसल इसके लिए एक जिंदा और रोशन मिसाल है। हिमायत हक के लिए ऐसे दलाइल व बराहीन पेश करने चाहिए जो दुश्मन और बातिल परस्त के कलब में उतर जाएं और वो जबान से ख्वाह इकरार हक ना करे लेकिन इसका ज़मीर और इसका कलब हक के इकरार पर मजबूर हो जाए, बल्कि बाज मर्तबा जबान भी बेइख्तियार ऐलान हक से बाज ना रह सके। आयत कुरान वजादिलम बिल्तिहा एहसनी हकीकत का ऐलान करती है, पैगंबरों और रसूलों की राह में है वो जदल व मुखासमत की मनक़ियाना राहों पर नहीं चलते, उनके दलाइल व बराहीन की बयाद महसूसात व मुशाहदात पर होती है या सादा हो जदानियात व अक़लियात पर। हज़रत इब्राहीम का असनाम परस्ती व कौकब परस्ती के मुतालिक जमहूर से मनाजरा और मनाजरा नमरूद उसकी वाज़ेह और रोशन मिसाल है। हज़रत इब्राहीम ने जमहूर के साथ मनाजरा में दलील का यही पहलू इख्तियार किया था जिसने सनम परस्तों को मजबूर कर दिया कि वो इकरार कर लें कि बेशक बुत किसी हाल में भी ना सुनते हैं और ना जवाब दे सकते हैं। अगर एक मुस्लिम के वालिदैन मशरिक हों और किसी तरह शरक से बाज ना आते हों तो उनकी मशरिकाना ज़िंदगी से बेजार और अलहदा रहते हुए भी उनके साथ दनीवी मुआमलात और आखिरत की पनदू निसाह में इज्जत व हुर्मत का मुआमला करना चाहे और सख्ती और दरिश्ती को काम में न लाना चाहे। हज़रत इब्राहीम का तर्ज अमल आज़र के साथ कती और यकीनी शहादत है। साथ दस्तरखान की वसत अगर रिया व नमूद से पाक हो और फितरी तकाज़े के पेश नज़र मेहमान नवाजी में वसत कलब और फराख हुसलगी पाई जाती हो तो अखलाक करीमाना में बहुत फजीलत शुमार होती है और सखा नफ्स और करम के नाम से मौसूम है ये वसिफ गरामी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हकीकत नफ्स बन चुका था और फितरी था। मेहमान नवाजी दस्तरखान की वसत आने वालों का एहतराम ऐसे औसाफ थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मसल आला की हद तक पहुँचे हुए थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हसब दस्तूर हज़रत इब्राहीम किसी मेहमान के इंतज़ार में जंगल में खड़े थे, क्योंकि बग़ैर मेहमान के ना उनका दस्तरखान बिछता था और ना वो खाना खाते थे। सामने से एक बहुत बूढ़ा आदमी नजर पड़ा जिसकी कमर भी सच हो गई थी और लकड़ी के सहारे बमुश्किल चल रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मुसर्रत के साथ उसको सहारा देते हुए घर लाए, दस्तरखान बिछा और खाना चना गया। जब सब फारिग हो गए तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, इस खुदाए यक्ता का शुक्र अदा कर जिसने हम सबको ये नेमतें अता फरमाएं। बूढ़े ने खुशमनाक होकर कहा, मैं नहीं जानता कि तेरा खुदाए वाहिद कौन है, मैं तो अपने मबूद बुत का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे घर में रखा है। ये जवाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत शाक गुजरा और इसको फौरा घर से रुखसत कर दिया। लेकिन कुछ वक्फा ना गुजरा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर अपने इस तर्ज अमल से महमदर हवा। इन्होंने सोचा कि जिस खुदाए वाहिद का शुक्र मैं इससे कराना चाहता था, इसकी शान तो यह है कि इस बूढ़े की इस तवील उम्र में वो बराबर अपनी नेमतों से इसको नवाजता रहा और इसकी बुत परस्ती, कफर और शरक से नाराज होकर एक वक्त भी इस पर रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद नहीं किया। फिर तुझको क्या हक था कि अगर उसने तेरी बात ना मानी और हक के कलिमा को कबूल ना किया तो खफा होकर इसको घर से निकाल दिया। ये वाक़या अपनी तारीख़ी हैसियत में इस हकीकत का ज़रूर ऐलान करता है कि हज़रत इब्राहीम के अखलाक करीमाना की वो बुलंदी जो हकीकी मसल आला तक पहुँची हुई थी, ज़रब अलमसल और ज़बान ज़द खलाइक थी और बल्ला शुबा उनका ये फ़िक्र पैगाम हक और दावत इस्लाम के लिए बेहतरीन असू है। 8 ताला जिन हस्तियों को अपने इबलाग हक के लिए चुन लेता है, उनके कलब व दिमाग को अपने नूर से इस दर्जा रोशन कर देता है कि न के सामने इश्क, हक व सदाकत के सिवाय दूसरी कोई चीज़ बाकी ही नहीं रहती। और इसलिए इनमें शुरू ही से ये इस्तेदाद वदियत होती है कि वो अहद तुफूलियत ही से अपने हम असरों में मुमताज़ और नुमायां नज़र आने कुत्ते और राह हक में अपना वाव इम्तिहान को खुशी से सुनते और सबर वाव रज़ा का असू हसना पेश करते रहते हैं। हज़रत असमील अलैहिस्सलाम का वाक़या इसकी शहादत के लिए शाहिद अदल और 22,000 अबरत व अज़मत है। 9 हज़रत लूत अगरचा हज़रत इब्राहीम के बरादरज़ादा और उनके परू थे, मगर शर्फ नबूवत से भी सरफराज हो चुके थे और खुदा के एलची बना दिए थे। इसलिए सदूम और आमूरा में हमा कस्म के मसाइब और वतन से दूर दुश्मनों के नरगा की तकलीफ के बावजूद इन्होंने सबर व इस्तिकामत से काम लिया और अपने बुजुर्ग चचा और ख़ानदान की
मदद की तलब की बजाय सिर्फ खुदाए अज़्ज़ व जल ही पर भरोसा रखते हुए इसके अहकाम के सामने रज़ा व तस्लीम का सबूत दिया। ये मकाम मुक़र्रबीन व नबिया का मीम है। ऐसी तरह की वीडियो और वक़िया को देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।